गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग कैसे हैं आप लोग? चलिए, सो वी हैव सम मोर क्लासेस लेफ्ट विद द एमसीक्यू बैच एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर वन शॉट रिवीजन क्लासेस, ठीक है? एंड इसके बाद आपका एक 6 आवर का मैराथन रहेगा. सो दिस विल बी योर शेड्यूल एंड एज यू नो योर एग्जाम इज ऑन 30th March. तो अभी हम लोग वी हैव सम 5-6 मोर क्लासेस फॉर द एमसीक्यूज एंड उसके बाद हम लोग वन शॉट रिवीजन क्लासेस करेंगे, ठीक है? हर रोज एक टॉपिक को समझेंगे विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम. अगेन इट इज नॉट पॉसिबल कि सारा का सारा सिलेबस हम लोग एग्जाम के 10-15 दिन पहले कंप्लीट कर लें, बट आई विल मेक श्योर कि वी डिस्कस ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑन द यूट्यूब. तो जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं वी विल रिवाइज हियर, ठीक है? ओके, चलो शुरू करते हैं. सो टुडेस टॉपिक विल बी रिलायबिलिटी. तो स्पेसिफिक टॉपिक पे हम करेंगे. सो यू कैन अज्यूम almost 3 to 4 questions will come from reliability. They have always been like this. 2-3 questions from validity, 2-3 questions from norms, 2-3 questions from hypothesis testing. So roughly 15 to 16 questions come from research and statistics. So today we'll start with reliability. Tomorrow validity. परसों मे बी छुट्टी रहे नहीं रहेगी, मे बी छुट्टी रहेगी आपकी बिकॉज स्टूडियो में कोई नहीं रहेगा. देन डे आफ्टर टुमारो विल बी नॉर्म्स. उसके बाद हम लोग और ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है? चलिए, बिकॉज टुडे आई नीड टू टीच यू सम न्यू टॉपिक्स विच आई एम अज्यूमिंग कि आपने मे बी अभी तक पढ़ा ना हो. सो विल डिस्कस सम न्यू टॉपिक्स ऑल्सो, ठीक है? चलो, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following best describes the concept of true score in CTT, classical test theory? क्या होगा इसका आंसर, बताइए. Tell me what is the answer for the first question. Option number A, option number B, option number C, option number D. So true score basically means what? अब true score होता क्या है? True score is basically you have to understand what is classical test theory, है ना? Classical test theory is basically a theory which deals about the test scores, है ना? जो respondents आपके किसी भी टेस्ट पे टेस्ट स्कोर्स देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, it deals with that theory. So we have this classical test theory which is this is older version, right? We have some new versions also. What this theory tells is that whenever you see a score, right, it has two components. One is observed component and one is error component. So your score can be divided into two parts, observed score and error score. So imagine there is an example, one respondent has scored 10, right? So we will assume that 9 is due to observed score, right? Observed matlab true score and error score, and there will be one which is counting as error score. So true score basically in सबका ट्रू स्कोर वर्सेस एरर प्लस एरर स्कोर इज इक्वल्स टू ऑब्जर्व स्कोर, है ना? तो ट्रू स्कोर का मतलब होता है बेसिकली द स्कोर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ व्हाट, all kinds of measurement error. So what it does mean actually that whatever score you will observe in any test, किसी भी तरह का टेस्ट हो, whatever score you will get, it will be having two components. एक होगा आपका ट्रू स्कोर which is actually the real ability of the person, ये actually में उसका दिमाग है, right? And there will be some minute error also, है ना? So imagine if there is a score of 10, we will say that this is the observed score, है ना? 10 का आपका observation है, but in this 9 is the true variance, true score है, and 1 can be attributed to some error, ठीक है? तो नाउ यू गॉट द आइडिया ऑफ क्लासिकल टेस्ट थ्योरी, है ना? रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इन सबको मेजर करने के लिए इसको यूज किया जाता है. देन which reliability coefficient is most appropriate for measuring internal consistency of a test with items scored on a Likert scale? क्या होगा इसका आंसर, बताइए. Likert स्केल पे अगर कोई आइटम्स आपके स्कोर हो रहे हैं तो क्या इसका आंसर होगा? Reliability, I hope you all know that it is the consistency of scores over the period of time. ये आपका reliability होता है, ठीक है? So you have basically two types of reliability, internal and external. Internal reliability क्या होती है? Internal reliability basically means that you are focusing on the item part of the test. External reliability means that you are basically focusing on the respondent side of the testing. Clear? क्या होगा इसका आंसर?
So if you are measuring something on Likert scale, if you are measuring something on like attitude scale, किसी भी तरह की scale use होती है, the best form is due to Cronbach alpha. Cronbach alpha हमेशा आपका best form होता है, ठीक है? अगर आपको Likert scale पे करना है, कुछ भी करना है, so best form will be your what? It will be your Cronbach alpha, ठीक है? Cronbach alpha, then Cutter-Richardson. Cutter-Richardson is basically for when you have dichotomous items. कॉर्नबैक अल्फा आपका डायकोटोमस पे यूज हो सकता है बट इट इज मोर सुटेबल फॉर योर लिकर्ट स्केल, मल्टीपल चॉइस, एमसीक्यू क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपका कॉर्नबैक अल्फा यूज होता है. क्लियर? ओके. Then question number 3. If a test has a reliability coefficient of 0.9, what percentage of observed score variance is attributable to true score variance? बताइए. So 0.90 what? It is observed score. तो उसमें से true score कितना होगा? What do you will say? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 90 में कितना परसेंट ट्रू वेरिएंस हो गया? ऑब्जर्व स्कोर 90 आया है, राइट? व्हाट विल बी द ट्रू वेरिएंस? कितना ज्यादा ट्रू वेरिएंस होगा? रियल वेरिएंस कितना है? रियल एबिलिटी कितनी आई? करेक्ट, इट इज ऑप्शन नंबर बी, 90%. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 90%. क्यों? क्योंकि 10% का एरर वेरिएंस है, राइट? 10% का एरर वेरिएंस है. सो अगर ऑब्जर्व स्कोर आपका 100 का आया, 90 का आया, कुछ भी है, ट्रू वेरिएंस वही होता है जो आपने ऑब्जर्व किया बेसिकली, बिकॉज हम एरर को 0 मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं. दैट्स व्हाई अगर कहीं पूछा जा रहा है कि एरर वेरिएंस कितना होता, 10, राइट? बिकॉज हम पूरे को मिला के ट्रू वेरिएंस मानते हैं. अगर किसी का ट्रू वेरिएंस 1 है, that means it will be having 0 error. Clear? So it is option number B. Then which of the following factors negatively affects test reliability? Negatively कौन इफेक्ट करेगा? बताइए क्या आंसर होगा इसका? नेगेटिवली कौन इंपैक्ट करेगा इसको? एनी गेसेस? होमोजेनिटी ऑफ द आइटम्स, इट विल बी पॉजिटिव. जितना ज्यादा होमोजीनियस होंगे उतना अच्छी बात है, राइट? इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द टेस्ट, it is good. Controlling test administration conditions, it is also good. But if you are having poorly written or ambiguous items, ambiguous का मतलब होता है confusing items, clear नहीं है सही से, then आपका जो टेस्ट होगा उसकी reliability कम हो जाएगी. So it will be option number C. Clear? Okay. The Spearman-Brown prophecy formula, prophecy बुझाओ, confuse हो जाओगे, ठीक है? The Spearman-Brown formula, simple रखते हैं. It is a coefficient of what? Reliability. Primarily used to. So maybe सब में काम आ सकता है. But what is the main purpose why we use Spearman-Brown formula? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? Calculate the standard error of measurement. Okay. Again, could be more than one options could be true, but you have to take primary. What is the main? Main purpose is basically to estimate the reliability of a test when its length is changed. You know this very basic thing. Reliability increases with the increase in number of items, है ना? टेस्ट की लेंथ बढ़ा दो, reliability, validity सब बढ़ जाएगा, right? But in what ratio it is changing? कैसे change हो रही है? कितना change हो रही है? If I'm having an item, if I'm having 40 items in my test, my reliability is 0.6. If I increase it to 100, now my test has 100 items. What will be new reliability? है ना? इस तरह के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए आपका स्पीयरमैन-ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला यूज होता है. क्लियर? सो इट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? सी होता है, करेक्ट हो, बट वो तो सारी ही चीज मेजर करेंगे ना.
स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट का कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा. इट इज ऑल्सो रिलायबिलिटी. दिस इज अ मॉडर्न कंसेप्ट टू अंडरस्टैंड रिलायबिलिटी. Standard error of measurement is basically a modern concept to understand the reliability. Clear? तो ये बेसिकली ऑप्शन नंबर ए होता है. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ न्यू कांसेप्ट फॉर रिलायबिलिटी. तो रिलायबिलिटी तो मेजर ही करता है. क्रॉनबैक हो, स्पीयरमैन हो, कर्डर रिचर्डसन हो, दे ऑल मेजर रिलायबिलिटी. बट व्हाट इज द मेन पर्पस? क्यों ये सबसे अलग है? इट इज ऑप्शन नंबर ए. क्लियर? चलो. Which type of reliability will be most appropriate to assess the consistency of scores over the period of time? सो कंसिस्टेंसी मेजर करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. क्या होगा इसका आंसर? बताइए. इट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी है ना. वेरी इजी क्वेश्चन. इट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी. क्लियर? वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग रिलायबिलिटी एस्टिमेट्स इज लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस इफेक्ट? काफी अच्छा क्वेश्चन है. सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम प्रैक्टिस इफेक्ट कौन से रिलायबिलिटी में होगा? सो प्रैक्टिस इफेक्ट की वजह से आपकी रिलायबिलिटी हैम्पर हो सकती है. सो विच टेक्निक इज लीस्ट अफेक्टेड बाय प्रैक्टिस इफेक्ट? क्या होगा इसका आंसर? बताइए. क्या होगा इसका आंसर? इज दैट अ क्वेश्चन? बताइए. करेक्ट. Some are saying C. Okay. Inter-rater reliability. Practice effect. Okay. C. B. Okay. Parallel forms reliability. क्या होगा इसका आंसर? ए तो नहीं होगा. टेस्ट ही टेस्ट आपको पता है बेसिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव तो ए ही है. मोस्ट अफेक्टेड ड्यू टू प्रैक्टिस इफेक्ट इट विल बी ए. तो ये तो नहीं होगा. स्प्लिट हाफ भी होता है इफेक्ट. प्रैक्टिस इफेक्ट उसमें भी आता है. सो वी हैव टू ऑप्शंस बी और सी. क्या होगा इसमें? बताइए. इट इज एक्चुअली बी. पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी. यू मस्ट बी सेइंग कि सर सी इंटरेटर में तो वी गिव एक्चुअली स्कोर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट जजेस. द प्रॉब्लम है कि हर जज एक ही बार में आइटम्स को टेस्ट नहीं करता है. राइट? द रेटर्स विल रेट एन आइटम मल्टीपल टाइम्स. सो इन दैट ऑल्सो वी अज्यूम दैट देयर विल बी अ कैरी ओवर इफेक्ट. राइट? दे आर 10 रेटर्स, दे आर 10 जजेस बेसिकली, स्कोरर्स, कुछ भी बोलो. दे विल रेट आइटम मल्टीपल टाइम्स. उनका मीन लिया जाता है. ये नहीं कि एक रेटर ने एक आइटम को एक स्कोर दे दिया एंड दैट विल बी कंसिडर्ड फॉर द फर्स्ट इंस्टेंस. नो, दे हैव टू गिव इट मल्टीपल टाइम्स. उसका मीन निकाला जाता है, फिर उसके साथ रेटिंग ली जाती है. तो वहां पे भी प्रैक्टिस इफेक्ट आ जाता है. बट पैरेलल फॉर्म में देयर इज नो चांस. यू हैव टू डिफरेंट बट सिमिलर टेस्ट. राइट? क्वेश्चंस दोनों में अलग अलग होंगे. डिफिकल्टी लेवल, डिस्क्रिमिनेशन लेवल सिमिलर होगा. राइट? क्वेश्चंस विल बी सिमिलर बट सेम नहीं होंगे. राइट? सो पैरेलल फॉर्म इज द राइट आंसर. ठीक है? इट इज ऑप्शन नंबर बी. देन हाई क्रॉनबैक अल्फा इंडिकेट्स. क्रॉनबैक अल्फा अगर हाई है तो व्हाट डज इट मीन? क्या होगा इसका आंसर? प्रैक्टिस इफेक्ट सैंपल से एसोसिएटेड होता है. करेक्ट. पर प्रैक्टिस इफेक्ट सैंपल, आप जो सैंपल समझ रहे हो वो सैंपल नहीं है. प्रैक्टिस इफेक्ट इज विद पायलट सैंपल. तो पायलट सैंपल पे भी आता है. राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिस इफेक्ट हमेशा ही सैंपल से आए. इट इज ट्रू कि मोस्ट ऑफ द केसेस में सैंपल से आएगा, बट इट इज नॉट दैट सैंपल विच यू आर अज्यूमिंग. दिस इज अ पायलट सैंपल. पायलट सैंपल कैन बी सम पीपल. पायलट सैंपल कैन बी योर स्कोरर्स ऑल्सो. क्योंकि आप कोई भी टेस्ट अगर बनाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपने दो रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर ली. यू हैव टू कैलकुलेट एवरी रिलायबिलिटी. ठीक है? सो प्रैक्टिस इफेक्ट, कैरी ओवर इफेक्ट, फटीग, ये सब चीजें सैंपल पे मोस्टली आती हैं बट नॉट इन एवरी केस. ठीक है? देयर आर सम मोर एक्सेप्शंस आल्सो. क्लियर? ऑल ऑप्शंस आर नॉट विजिबल.
अब विजिबल है? हाई क्रॉनबैक अल्फा, बताइए। हाई क्रॉनबैक अल्फा का मतलब क्या हुआ? करेक्ट। द टेस्ट आर आइटम्स आर हाईली व्हाट? होमोजीनियस। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, क्रॉनबैक अल्फा बेसिकली represents the homogeneity of the test. Always remember this thing, मैं बहुत बार ये चीज बोल चुका हूं। For a good reliability, ध्यान से सुनो, उसको लिख लो। For a good reliability, your items should be homogeneous and your sample should be heterogeneous. ठीक है, इस चीज को लिख लो, this is a very important concept. For a high reliability, good reliability, your test items, statements should be homogeneous. That is why A is correct, right? And your sample should be heterogeneous. Homogeneous मतलब same, similar. Heterogeneous मतलब अलग अलग, variable. ठीक है, इस चीज को अच्छे से याद कर लो। What is the major disadvantage of test retest reliability? बताइए। टेस्ट retest reliability का मेजर ड्रॉबैक क्या है? करेक्ट, इजी क्वेश्चन। इट इज ससेप्टेबल टू मेमोरी एंड प्रैक्टिस इफेक्ट। इसके पहले क्वेश्चन, राइट? मोस्ट अफेक्टेड विद प्रैक्टिस इफेक्ट इज टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। ठीक है, इसका सोल्यूशन क्या होता है? वी हैव अ लाइक इनफ टाइम गैप बिटवीन द टू टेस्टिंग सेशंस, है ना? अगर प्रैक्टिस इफेक्ट ही हर बार आ रहा है, सो व्हाई इज इट अ मेथड ऑफ रिलायबिलिटी? इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। नो, we take a considerable time gap between the two testing sessions assuming कि practice effect negligible होगा। ठीक है, that's why। which of the following will increase the reliability of test? है ना, reliability को increase कौन करेगा? बताइए। correct, it is also easy question, right? it is increasing number of items using a heterogeneous group of items. this is wrong। ठीक है, homogeneous items होंगे, आइटम्स आपके होमोजीनियस होंगे, नॉट हेट्रोजीनियस। सैंपल विल बी हेट्रोजीनियस। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, पर क्या मैच्योरेशन भी आंसर हो सकता है? हाँ, मैच्योरेशन, प्रैक्टिस इफेक्ट, दीज आर सेम थिंग, सिमिलर कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 10, ऑप्शन इज आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगेन, सैंपल शुड बी हेट्रोजीनियस, आइटम शुड बी होमोजीनियस। ठीक, चलो। which of the following is not a type of reliability? बचा वाला क्वेश्चन है, इट इज ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी, है ना? कंस्ट्रक्ट इज अ वैलिडिटी इन एनी क्वेश्चन इफ द क्वेश्चन इज फोकसिंग मोर ऑन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट पार्ट, है ना, इट विल बी कंस्ट्रक्ट। इफ इट इज फोकसिंग ऑन द आइटम्स पार्ट, कंटेंट पार्ट, इट विल बी कंटेंट। क्लियर? इस चीज को मैं बहुत बार बता चुका हूँ। प्रॉब्लम इज आप लोग सिर्फ ट्रिक याद रखते हो, है ना? ट्रिक क्या है? किसी भी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट वर्ड लिखा हो तो कंस्ट्रक्ट ही होगा, ऐसा होता नहीं है ना। इतना तो बच्चे वाले क्वेश्चन नहीं देगा ना एनटीए आपको, राइट? सो यू हैव टू फिगर आउट आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, इज इट टॉकिंग अबाउट द थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल आइडिया, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो कंस्ट्रक्ट होगा। इज इट स्पेसिफिकली मेंशनिंग अबाउट द कंटेंट, आइटम, स्टेटमेंट, इंडिकेटर्स, सेंटेंसेस, तो ये कंटेंट होगा। ठीक है, तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। Which of the following is true about the relationship between reliability and validity? Reliability and validity का क्या relationship होता है? बताइए। Reliability and validity का क्या relationship होता है? आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर? A test can be valid without being reliable. Okay. So imagine करते हैं एक IQ का टेस्ट है, that is measuring IQ but reliable नहीं। Okay. B, a test must be reliable to be valid. Very good Rashita. It is option number B. एक टेस्ट को आपको पहले रिलायबिलिटी होनी चाहिए, है ना? एक कार है तो कार पहले चलनी चाहिए ना, फिर आप उसको बोलोगे हाँ इसमें स्टीयरिंग व्हील है, ये सब है। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अ कार हैज टू लाइक मूव, तभी वो कार होगी ना। कुछ भी व्हीकल बनाओगे उसको मूव तो होना पड़ेगा ना, पहले पहले मूव हो, फिर आप देखोगे कार में और क्या कर सकते हैं। सो कोई भी एक टेस्ट है, इट शुड बी रिलायबल फर्स्ट, उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी होनी चाहिए।
If there is a stranger, right, and he helps you every time, so this is a stranger, but he is helping you every time, consistency high है, then afterwards he become your friend. अब ये ट्रू फ्रेंड है, वैलिड भी है, राइट? एकदम से किसी को दोस्त नहीं बना लेते हो ना. फर्स्टली यू विल चेक कंसिस्टेंसी अच्छी है, दैट पर्सन इज हेल्पिंग मी, दैट पर्सन इज सपोर्टिंग मी इन डिफरेंट डिफरेंट टाइम, डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स, दैट इज वाई इट इज अ फ्रेंड, है ना. तो रिलायबल होना बहुत जरूरी है. क्लियर? इट इज ऑप्शन नंबर बी. व्हाट डज द रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ जीरो इंडिकेट? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट अगर जीरो है तो उसका क्या मतलब होगा, बताइए. इट इज बोथ बी एंड सी. नो रिलायबिलिटी, ये भी ठीक है. अब अगर जीरो आ रहा है इट मींस कि एरर वेरिएंस बहुत हाई है. एरर वेरिएंस यहां पे क्या होगा, 100. इफ योर ट्रू वेरिएंस इज जीरो, दैट ऑटोमेटिकली मींस कि आपका 100 एरर वेरिएंस 100 होगा, बहुत हाई एरर वेरिएंस होगा. रिमेंबर, ऑब्जर्व स्कोर इक्वल टू ट्रू स्कोर प्लस एरर स्कोर, या ट्रू वेरिएंस प्लस एरर वेरिएंस. तो अगर ट्रू वेरिएंस जीरो है तभी ना आपका एरर वेरिएंस 100 है, बहुत हाई एरर वेरिएंस है, एकदम ही गलत है इंस्ट्रूमेंट आपका. सो इट इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी. क्लियर? Which factor increases the reliability of behavioral observations? So अगर आप लोग behavioral observations की बात कर रहे हो, राइट? अरे भाई ये अच्छा कलर है. सो आप लोग behavioral observations की बात कर रहे हो, तो कौन सा इसमें से इंक्रीज करेगा रिलायबिलिटी को? क्या होगा इसका आंसर, बताइए. रिलायबिलिटी कोफिशिएंट का मतलब होता है ट्रू स्कोर. इन अ वे यू कैन से दैट, बट रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज मोर फोकस्ड ऑन द ट्रू स्कोर, लेस फोकस्ड ऑन द एरर स्कोर, है ना. इसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो ट्रू स्कोर ही हो. इट इज बेसिकली मोर फोकस्ड ऑन द व्हाट, ट्रू स्कोर, ट्रू वेरिएंस, लेस फोकस ऑन द एरर वेरिएंस. ठीक है. सो इसका क्या आंसर होगा, इट विल बी more observers and averaging their ratings. ऑप्शन नंबर बी, है ना. ऑब्जर्वर्स को बढ़ा दो, देन उनकी रेटिंग से एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे, सो इट विल बी गुड फॉर अस. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलायबिलिटी, व्हाट इज अटेन्युएशन? सो अटेन्युएशन का कंसेप्ट आपने सिर्फ अटेंशन में पढ़ा था. सो ट्राई टू अप्लाई दैट लॉजिक हियर. रिलायबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अटेन्युएशन का मतलब क्या हो सकता है? ट्राई टू अप्लाई दिस कंसेप्ट. क्या होगा? वेरी गुड. इट इज ऑप्शन नंबर बी, राइट. रिडक्शन, बिकॉज यू नो अटेन्युएशन का मतलब होता है रिडक्शन. अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, सो इफ यू नो द मीनिंग ऑफ अटेन्युएशन इट मींस रिडक्शन, राइट. सो आर्टिफिशियल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज. इंप्रूवमेंट मतलब इंक्रीज. इंक्रीज इन एरर वेरिएंस, साफ साफ दिख रहा है एरर वेरिएंस, है ना, बढ़ रहा है. सो अटेन्युएशन का मतलब होता है रिडक्शन इन ऑब्जर्व कोरिलेशंस ड्यू टू मेजरमेंट एरर. क्लियर? आप क्या बोलोगे, सर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि एरर वेरिएंस बढ़ रहा है. अगर हमारा ट्रू वेरिएंस कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली मींस कि एरर वेरिएंस बढ़ रहा है, तो डी क्यों नहीं चाहिए? नो, राइट. द मोस्ट एक्यूरेट विल बी बी, क्योंकि एटेन्युएशन का मतलब ये होता है कि कोरिलेशंस कम हो रहे हैं, एंड इफ द कोरिलेशंस आर रिड्यूसिंग देन फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस विल कम, है ना. तो आपको लग सकता है कि डी भी इसका आंसर हो सकता है, बट मोर एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ अटेन्युएशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलायबिलिटी इज ऑप्शन नंबर बी. चलो. Which measure of reliability would be most appropriate for performance assessment graded by multiple raters? तो इजी क्वेश्चन हो गया. मल्टीपल रेटर्स का मेंशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली इट विल बी व्हाट, योर इंटर रेटर रिलायबिलिटी, है ना. इंटर रेटर रिलायबिलिटी, इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी, जजेस रिलायबिलिटी, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द नेम्स. ऑलराइट. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है. नाउ यू नो द आंसर. द मॉडर्न कंसेप्ट
to measure reliability is basically standard error of measurement, because whatever error you are having in the measurement, right, remaining will be considered as reliability. Clear? So reliability and standard error of measurement are basically inversely correlated. क्या होते हैं? इनवर्सली उल्टा रिलेशनशिप होता है। SEM इंक्रीजेस, एरर बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली रिलायबिलिटी कम होगी, कोई लॉजिक यूज करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? SEM विल लूज, डिक्रीज, रिलायबिलिटी विल बी हाई, इंक्रीज, है ना? सिंपल लॉजिक, इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। What happens to reliability when item variance is low? This is a very important question. Very important question. Item variance अगर low है तो क्या होता है reliability? It increases or decreases? ये तो हो नहीं सकते नीचे वाले ऑप्शन फालतू हैं। So either it is A, either it is B. क्या होगा? Item variance low है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्विक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A, okay, A, okay, very good, very good, it is A, है ना? It is wrong actually. आप लोगों ने फिर से, अच्छा किम, ओके ओके, तुमने पहले करेक्ट दिया फिर से रॉन्ग कर दिया, गुड, पीयर प्रेशर, है ना? फिर से आप लोगों ने ट्रिक याद कर ली। मैंने अभी बताया आइटम शुड बी होमोजीनियस, सैंपल शुड बी हेटेरोजीनियस, तो आपने ट्रिक यूज करी। व्हाट ट्रिक? इफ देयर इज एनी मेंशन ऑफ द आइटम इन द क्वेश्चन, रिलायबिलिटी शुड डिक्रीज, है ना? क्यों? क्योंकि आइटम वेरिएंस इज लो, मतलब होमोजेनिटी कम है, होमोजेनिटी कम है तो रिलायबिलिटी लाइक ऑब्वियसली, है ना? ऐसे कुछ लॉजिक लगाया होगा ना? हाँ, इट इज बेसिकली ऑप्शन नंबर बी, रिलायबिलिटी डिक्रीजेस। आइटम वेरिएंस अगर लो है आपका, इसका मतलब है कि आपका हेटेरोजेनिटी लो है। आइटम वेरिएंस इज बेसिकली द वेरिएबिलिटी यू विल सी इन द स्कोर्स बाय द रिस्पोंडेंट्स, वहीं से तो कैलकुलेट होता है मीन वेरिएंस। कहां से कैलकुलेट करोगे? जो लोग आंसर करते हैं। एंड इफ पीपल आर आंसरिंग इन अ सिमिलर मैनर, so your reliability is automatically low. If people are measuring similar things, people are answering like in a similar manner, similar pattern, इसका मतलब है heterogeneity बहुत कम है। heterogeneity अगर कम है सैंपल की, it is obviously mean that reliability will decrease, है ना? तो अगेन ट्रिक को ट्रिक की तरह यूज करो, ट्रिक को रियल कंसेप्ट से रिप्लेस मत करो, है ना? क्लियर? तो ये चीज मुझे अभी अपने बैचेस में रियलाइज हुआ है, टू टीच लॉट ऑफ ट्रिक्स। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स बताई अपने बैचेस में, राइट? बट द प्रॉब्लम इज बच्चे ट्रिक को ही याद कर रहे हैं, फिर मैंने जो मेन कंसेप्ट पढ़ा है वो भूल गए, ट्रिक याद है। एंड द ट्रिक विल वर्क ओनली एट सम ओकेजन्स। तो ट्रिक हमेशा कुछ ही ओकेजन्स पे काम करती है, दिमाग आपको रियल कंसेप्ट में ही लगाना है, ठीक है? इट इज ऑप्शन नंबर बी। देन which of the following types of reliability is directly influenced by the degree of agreement among judges? So जजेस की बात हो गई है, तो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन, दैट विल बी योर इंटर रेटर रिलायबिलिटी, है ना? ऑप्शन नंबर सी। अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट कितना जजेस का? इट इज ऑप्शन नंबर सी। देन which coefficient is most suitable when two different forms of the same test are administered? क्या होगा इसका आंसर? Two different forms of the same test are administered. Correct. It is what? Parallel form reliability. Clear? So again, in parallel form reliability, forms are good when item difficulty index, item discrimination index is similar or same. तो हमेशा याद रखो, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी और अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, इसमें जो दोनों फॉर्म्स में स्टेटमेंट होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, दे आर नॉट सेम, सेम नहीं होते हैं। वी ट्राई टू मेक देम सिमिलर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 अगेन। अच्छा, 1 एंड 2 अगेन, ऑल राइट, कर लेते हैं डिस्कस 1 एंड 2 अगेन।
विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ ट्रू स्कोर। ट्रू स्कोर क्या होता है? द स्कोर फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ एरर, यही तो होता है ना ट्रू स्कोर। ऑब्जर्व स्कोर में क्या होते हैं? दो चीजें होती हैं, ट्रू स्कोर, एरर स्कोर। तो ट्रू स्कोर क्या होता है? जिसमें कोई एरर ना हो, सिंपल है ना। देन टू क्या है? रिलायबिलिटी कोफिशिएंट इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर मेजरिंग इंटरनल कंसिस्टेंसी। कहीं भी अगर बोला गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी, है ना, कहीं भी अगर बोला गया है इंटरनल कंसिस्टेंसी, योर आंसर विल बी क्रोनबेक अल्फा। द प्रॉब्लम इज इंटरनल कंसिस्टेंसी और भी तरह से मेजर होती है ना, तो सिर्फ ट्रिक याद नहीं करना है। क्रोनबेक अल्फा इज मोस्ट सुटेबल फॉर इंटरनल कंसिस्टेंसी, होमोजेनिटी ऑफ द टेस्ट, ये सब अगर आपको मेजर करना है तो क्रोनबेक अल्फा इज द मोस्ट सुटेबल। आई एम सेइंग मोस्ट सुटेबल, इसका मतलब और भी होंगे, है ना। तो सिर्फ ये नहीं है, नॉट, दिस इज नॉट द ओनली वन, दिस इज मोस्ट सुटेबल। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं। कल आई सी यू सेम एट द 6 PM टाइम, एंड कल हम लोग डिस्कस करेंगे वैलिडिटी के सेम सम क्वेश्चंस, एंड आई ट्राई टू टीच यू सम न्यू कंसेप्ट, एंड होपफुली आपका कल कंटेंट और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में डिफरेंस क्या होता है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए।